اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 11 دسمبر 2023۔ اپنے یوٹیوب چینل پرواز پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، محمد سلیم پرواز، سینئر صحافی۔ تو NA75 یہاں سے دانیال عزیز جیتے گا یا کوئی اور، یہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اسسٹنٹ کمشنر ناکام یا حکومتی پالیسیاں ناکام۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مریم نواز جو کہ لیڈر ہے مسلم لیگ نون کی اور اس کو آئندہ کا وزیر اعظم سمجھا جا رہا ہے، تو وہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے سلسلہ میں جلال پور جٹا میں انہوں نے ایک شو کیا، تو پورا میڈیا، سوشل میڈیا، ایون کہ اسٹریم میڈیا بھی یہ واویلا کر رہا ہے کہ وہ جلسہ ناکام ترین جلسہ تھا۔ اور ناکامی یہ نہیں کہ وہاں پر عوام جو ہے وہ کم یا زیادہ تھی، عوام تو کم ہی تھی، لیکن سب سے ناکامی جو وہاں پر جلسے میں ہوئی، جس کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، کہ جب مریم نے اپنا خطاب شروع کیا تو عوام جلسہ گاہ سے جانا شروع ہو گئی۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے لیڈر کی، کہ جلسہ گاہ سے جب لیڈر خطاب کر رہا ہو تو عوام جانا شروع ہو جائے، یہ ناکامی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جلسہ تو ناکام ہوا۔ دوسری طرف یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایک PTI کا نامعلوم ورکر تھا، لیکن آج کل وہ لیڈر ہے، شیر افضل مروت، وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو ان کی پاپولرٹی اتنی ہے کہ بعض تجزیہ نگار اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف سے بھی زیادہ پاپولر ہے۔ اندازہ لگا لیں، یہ صورتحال ہے اس پارٹی کی جس کو کہا جا رہا ہے، یا اس لیڈر کی جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ کا وزیر اعظم ہوگا۔ تو اندازہ لگا لیں، ایک PTI کا عام سا ورکر، اس کی پاپولرٹی اور وزیر اعظم جو بننے جا رہا ہے وہ ڈمی ہوگا، کیا کہیں گے اس کو، وہ سلیکٹڈ ہوگا، کیا ہوگا۔ یہ تو ابھی سے سب کو معلوم ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوا تو وہ کیا ہوگا، سلیکٹڈ ہوگا، ڈمی ہوگا، کیا ہوگا۔ تو ایک اور خبر میں یہ دینا چاہوں گا کہ بنجر زمینوں کو، بنجر جو زمینیں ہوتی ہیں جن پہ فصلیں نہیں ہوتی، ان کو آباد کرنے کے لیے PDM حکومت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ ہم بنجر زمینوں کو آباد کریں گے، اور وہ بڑی ہائی لیول کی کمیٹی تھی جس میں وزیر اعظم تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے، اور ہائی لیول کے آفیسرز اس کمیٹی میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بنجر زمینوں کو کیسے آباد کریں گے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بنجر زمینوں کو تو انہوں نے کیا آباد کرنا ہے، یا جو آباد زمینیں ہیں ان کو کھاد نہیں مل رہی۔ وزیر تجارت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو جتنی کھاد کی طلب ہے، یوریا کھاد، جتنی یوریا کھاد کی طلب ہے ہم وہ مارکیٹ میں دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو مل نہیں رہی۔ یہ وزیر تجارت صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یا اس کی پالیسی غلط ہے، یا کیا کر رہے ہیں کہ عوام تک وہ جو کسان ہیں وہ ان کو کھاد، یوریا کھاد جتنی ان کو درکار وہ مل نہیں رہی۔ دوسری طرف ان کے ریٹ جو ہیں
वो 2000 से 2500 तक एक बोरी के पीछे जायद वो ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किलात हैं हसूल यूरिया खाद में। तो इसमें नाकामी आप लोग ये कर सकते हैं तजिया कि इसमें नाकामी हुकूमत की पॉलिसियों की है या असिस्टेंट कमिश्नर्स की है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये चीज़ें जो हैं किसानों को बर वक्त और पूरी कीमत पे मुहैया की जाएं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर्स भी नाकाम हैं, उनके साथ साथ हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकाम हैं, या वज़ीर तजारत नाकाम है, या माफियाज कामयाब हैं। ये इस सिलसिले में है कि माफियाज ही कामयाब हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक माफियाज ही कामयाब हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बंजर ज़मीनों को अभी थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ दें। जो आबाद ज़मीनें हैं, प्लीज़ उनको, उन किसानों को खाद मुहैया करें और पूरे रेट पर मुहैया करें। तो दूसरी मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, इनका मुकाबला किया जा रहा है कि कौन बेहतर है। अंदाज़ा लगा लें, स्ट्रीम मीडिया क्यों, वो उसको ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसको कोई इतना उसके फेवर में नहीं जा रहे, क्योंकि वो उनके मुताबिक, आम आवाम के मुताबिक एक सर्वे है, उनके मुताबिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसको कोई इतना उसके फेवर में नहीं जा रहे, क्योंकि वो उनके मुताबिक, आम आवाम के मुताबिक एक सर्वे है, उनके मुताबिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी खबर और सही खबर आवाम तक नहीं पहुंचा रहा। जो सही खबर है वो पहुंचाने की कोशिश भी करे, पैमरा आड़े आ जाता है, जबकि सोशल मीडिया से तमाम खबरें लोगों तक पहुंच जाती हैं। हाँ, इसमें एक आंसर ज़रूर है कि बाज़ खबरें जो होती हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन जो खबरें ऑथेंटिक नहीं होती, लोग अपने विजन से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये खबर में कोई सदाकत नहीं है इसके। लेकिन खबरें जो होती हैं वो तमाम के तमाम सोशल मीडिया आजकल ज़्यादातर जो देखा जा रहा है या यकीन किया जा रहा है जिसमें, वो सोशल मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसकी खबरें जो हैं बार बार 2-4 खबरें वही बार बार लोग जो हैं वो उकता जाते हैं। तो ये सूरत हाल है मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया इस वक्त पूरी आबोताब से चमक रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो एक और मैं खबर ये देना चाहूँगा कि NA 75-75 शकरगढ़ का जो NA का जो हल्का है, जहाँ पर दानियल अजीज़ की जो बीवी है वो इधर से MNA थी, तो क्योंकि दानियल अजीज़ नायल हो गया हुआ था इसलिए उसकी जगह उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो MNA थी। तो दानियल अजीज़ का जो हल्का जिसको कहा जाता है NA 75, उसमें हमारे एक एंकर हैं हबीब अकरम साहब, सुनो न्यूज़ से, वो तमाम हलकों में जा रहे हैं, अवामी सर्वे कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। तो हबीब अकरम इधर चौक शकरगढ़ में मैंने खुद वॉच किया, वो इधर आया था, इधर और भी इलाकों में गया होगा, तो उन्होंने एक तजिया किया। इधर मैंने देखा जब वो खड़ा था तो नून लीग के कुछ लोग जो उन्होंने बाकायदा फ़ोन कर करके अपने दोस्त अहबाब को उधर बुलाया कि यार नून लीग की बात करें, तो उन्होंने आकर की भी, लेकिन उसके बावजूद आम जो लोगों से वो पूछ रहा था वो ये कह रहे थे कि हम PTI की हिमायत करते हैं। तो इस शकरगढ़ में भी नून लीग के लोगों को इधर मैनेज करने के बावजूद PTI इधर से हबीब अकरम के सर्वे के मुताबिक जीत गई। उन्होंने ये भी फरमाया कि इधर अभी कोई भी कैंडिडेट नहीं अभी तक PTI का कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, उसके बावजूद लोगों ने PTI के हक में फैसला किया। तो इसी के साथ एक दो खबर और लोकल मैं ये करना चाहूँगा कि शकरगढ़ में ट्रैफिक का जो
सिस्टम है वो इंतहाई ख़राब है। जब बच्चों को छुट्टी होती है या सुबह का टाइम होता है जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तो बसों के टाइम होते हैं जो कस्बों से देहातों से बसें आती हैं, वो शहर से गुजर कर जाती हैं। तो वो जब शहर में आती हैं तो वो जो ड्राइवर होते हैं बसों के, वो जहाँ दिल करता है बस को खड़ा करते हैं, सवारियाँ उतारते हैं, सवारियाँ खड़ी करते हैं, और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। टाइम पर स्कूल भी वो बाज़ औक़ात उनको पहुँचने में मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन बसों वालों ने, क्योंकि जो बसें चलाते हैं या बसों का अमला होता है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि बच्चों का कोई हर्ज हो रहा है। वो अपने अंदाज से, अपने तरीके से जहाँ दिल करता है गाड़ी को खड़ा करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ चौक में खड़े होते हैं, इधर उधर वो खड़े नहीं होते, तो इस वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। तो इस सिलसिला में मैं असिस्टेंट कमिश्नर शकरगार खिजर एजाज साहब से, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन शायद उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। उनको चाहिए कि ये जो टाइम होते हैं ना सुबह के, ख़ास तौर पर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 1 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक, 2 घंटे वो 2 घंटे ये, 4 घंटे टोटल जो बड़ी बड़ी बसें आती हैं शकरगढ़ के, उनका दाखिला बंद कर दिया जाए। और वो जो बाईपासेज हैं, ठीक है, वो बाईपासेज है, वो इस सहल नहीं है कि उनमें से गाड़ियाँ जाए, लेकिन मजबूरी है, या तो उनको भी ठीक करें, ये अगर वो उनके इख्तियार में है, नहीं तो जैसे भी है उन बसों को उधर से गुजारा जाए, ताकि शहर की जो ट्रैफिक है वो रवां दवां रहे और अच्छे तरीके से चलती रहे। और भी 2-3 थी खबरें लोकल, वो असिस्टेंट कमिश्नर के मुतल्लिका वो कल इंशाल्लाह दूंगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर थी, बड़ी अजीब और बड़ी अलमनाक थी। वो एक बच्चा 7 साला, वो उसकी जो 22 दिन से पहले से जो वो गायब था, जो उसका वालिद साहब ने उनका जो एप्लीकेशन भी दी हुई थी, FIR दर्ज करवाई हुई थी, वो गुम हो गया हुआ है। तो अगवा का पर्चा था, लेकिन वो आज एक जौहर से उसकी डेड बॉडी मिली। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। तो अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और जो मुल्ज़म हैं या मुजरम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। ये DPO साहब आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो इसी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।